اسرے رواں اسلام کے دامن میں آ، اے زنے اسرے رواں اسلام کے دامن میں آ، زینت بز میں جہاں اسلام کے دامن میں آ، کل تجھے بخشی تھی کل بھی بخشی تھی تجھے اسلام ہی نے زندگی، آج بھی تیرا محافظ بس یہی اسلام، اے زن عصر رواں اسلام کے دامن میں آ۔ بہت اچھا کھاتا کھلا ہے، آپ لوگ دل سے سن رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ کو قبول فرمائے، مشکل کو آسان فرمائے۔ دوسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، کس لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے، کس لڑکی سے نکاح کرنے پر فائدہ ہوتا ہے، اولاد بھی نیک ملتی ہے، کس عورت سے نکاح کرنے میں فائدہ ہوتا ہے۔ ایک لڑکی پر دو لڑکے نے پیغام دیا، ایک لڑکا مالدار ہے، ایک لڑکا عالم ہے، ایک مال والا ہے، ایک علم والا ہے۔ اب باپ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو رہا کہ لڑکی دیں تو کس کو دیں، کبھی عالم کا منہ دیکھ رہا، کبھی مالدار کا منہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے یہودی سے پوچھا، میری بیٹی پر دو لڑکے نے پیغام دیا ہے، ایک مالدار ہے دوسرا عالم ہے، کس کو بیٹی ہاتھ میں دینا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مال پر علم کو فضیلت ہے، مالدار پر عالم کو فضیلت ہے، تم بیٹی مالدار کو مت دو، عالم کو دے دو۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، ایک لڑکی پر دو لڑکے کا پیغام، ایک مالدار ہے دوسرا غریب ہے۔ اب باپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کس کو پیغام دینا چاہیے، کس کا پیغام قبول کرنا چاہیے؟ اس نے مجوسی سے پوچھا کس کا پیغام قبول کرنا چاہیے؟ کہا کہ جو ایران کا بادشاہ ہے وہ مال کو دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے، جو روم کا بادشاہ ہے وہ حسن و جمال کو دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے، جو عرب کے لوگ ہیں وہ خاندان کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، اور جو تمہارے نبی پیغمبر محمد ہیں وہ دین اور اخلاق کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں۔ اب دقیانوس کے سامنے بات آ گئی، لڑکا غریب ہے، لڑکا امیر ہے، بیٹی کس کے ہاتھ میں دیا جائے؟ اس نے فیصلہ لیا اور فیصلہ کر کے اپنی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ اس نے غریب کے ہاتھ میں دے دیا۔ پوچھنے والے سکندر بادشاہ نے پوچھا، آپ نے اپنی اکلوتی بیٹی کو مالدار کے ہاتھ میں دینے کے بجائے ایک غریب کے ہاتھ میں دے دیا؟ اس نے کتنا پیارا جواب دیا، آنکھ کی پٹی ہٹانے کے لیے کافی ہے۔ کہا کہ میں نے اس مالدار کو بیٹی اس لیے نہیں دیا، اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ اپنے مال کو برباد کر دیتا، مال برباد کر دے گا دارو شراب میں، الٹا سیدھا کام میں، چونکہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل ہے، مالدار ہے، مال کو برباد کر دے گا۔ یہ علم والا ہے، غریب ضرور ہے، علم کی برکت سے یہ مالا مال ہو جائے گا، اس لیے میں نے اس کو بیٹی دیا، اس کو بیٹی نہیں دیا۔ آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا۔
3 लड़की बादशाह के सामने आई है। बादशाह को पसंद करना है किस लड़की से निकाह करना है। पहली वाली लड़की सामने है, बीच वाली लड़की सामने है, बगल वाली लड़की सामने है। अब बादशाह कभी इसको देखता है, कभी बीच वाली को देखता है, कभी बगल वाली को देखता है, कभी दिल आता है कि इसको कबूल करूं, कभी दिल आता है कि उसको कबूल करूं। तो झट से पहली लड़की कहती है हुजूर मुझको कबूल कर लो। तो बादशाह ने कहा क्यों? तो कुरान की आयत पढ़ दी, वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान। जैसे अबू बकर पहले ईमान लाए वो अफजल हैं, उसी तरह मैं पहले खड़ी हूँ, मैं अफजल हूँ, मुझको कबूल कर लीजिए। बादशाह हैरत में पड़ गया कि लड़की होकर के कुरान का इतना इल्म रखती है। तो बगल वाली कहती है कि हुजूर उसको कबूल मत कीजिए, बगल वाली को कबूल मत कीजिए, मैं बीच में हूँ, मुझको कबूल कर लीजिए। कहा कि तुमको कैसे कबूल करूँ? कहा नबी की उम्मत दरमियानी उम्मत है, पिछली उम्मत से भी अफजल है, अगली उम्मत से भी अफजल है। नबी की उम्मत दरमियानी उम्मत है, मैं दरमियान में खड़ी हूँ, मुझको कबूल कर लीजिए, पहली वाली को छोड़ दीजिए, बगल वाली को छोड़ दीजिए। बादशाह और हैरत में पड़ गया कि ये भी कुरान का इल्म रखती है। तीसरी वाली का मुंह देखने लगा तो तीसरी वाली कहती है बादशाह सलामत, पहली को भी कबूल मत कीजिए, दूसरी को भी कबूल मत कीजिए, मुझको कबूल कर लीजिए। कहा क्यों? वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। दुनिया पहले है, आखिरत बाद में है, मैं सबसे बाद में हूँ। जैसे आखिरत को फजीलत है उसे मुझको फजीलत है, आप मुझको कबूल कर लीजिए। बादशाह हैरान था कि एक लड़की से निकाह करना है, लेकिन तीनों की सीरत को देख करके बादशाह तीनों पर कुर्बान हो गया, निकाह करने के लिए मजबूर हो गया। याद रखिए आप किसान आदमी हैं, आप मकई की फसल निकाले हैं, 4 काम करने पड़े हैं आपको। सबसे पहले आपने खेत तैयार किया था, उसके बाद आपने बीज डाला था, उसके बाद आपने वक्त पर पानी वक्त पर खाद दिया था, उसके बाद आपने अथवा बथुआ जंगल को साफ किया था, तब आपको गल्ला मिला। अगर अच्छा बच्चा चाहिए तो आपको 4 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम, अच्छी माँ से निकाह करना पड़ेगा। जब माँ अच्छी होगी तो उसकी कोख का बच्चा अच्छा होगा। अच्छा बाप बनना पड़ेगा, जब बाप अच्छा होगा उसकी नस्ल अच्छी होगी। बच्चे को तालीम दिलानी पड़ेगी, जो बच्चा तालीम पाएगा वही इंसान होगा। बच्चे को गलत माहौल से बचाना होगा, वरना वो शक्ल का इंसान होगा, सोच समझ के एतबार से शैतान होगा। गौर करने वाली बात है, ये ज़मीन मिसाल है माँ की, ये बीज मिसाल है बाप की, ये तालीम वक्त पर पानी वक्त पर खाद मिसाल है तालीम की, और ये अथवा बथुआ उल्टा सीधा घास को साफ किया, ये मिसाल है बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा बच्चा चाहिए तो अच्छी माँ से निकाह करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह व्हाट्सएप में लड़की ढूंढ ढूंढ करके निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह ऐसे लोग हाथ उठाए हैं जिनकी शादी होने ही वाली नहीं है। खैर माशाअल्लाह ऐसे लोग हाथ उठाए। वो माएँ पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माएँ जब के लेती थी बनाए तो यूं बेटे को देती थी दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत में खत्म हो जिंदगानी। तेजी के साथ पैगाम निकल रहा है, आपको जल्दी से फारिग करना है। तीसरा पैगाम आ रहा है आपको ये बताने के लिए कि निकाह सस्ता था, महंगा कैसे हो गया। निकाह आसान था, मुश्किल कैसे हो गया। 4 वजह से मुश्किल हुआ। निकाह इतना आसान है, इतना आसान है, आपको सुन करके ताज्जुब होगा। काजी का निकाह पढ़ाने के लिए होना भी ज़रूरी नहीं है, निकाह इतना आसान है। मस्जिद में निकाह पढ़ाना भी ज़रूरी नहीं है, पढ़ाना बेहतर है, नहीं पढ़ाया ज़रूरी नहीं है। और बारात सरात का होना भी ज़रूरी नहीं है। 2 आदमी के सामने लड़का बोले मैंने लड़की को कबूल कर लिया, लड़की बोले मैंने लड़का को कबूल कर लिया, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। इतना निकाह आसान है, लेकिन इतना मुश्किल हो चुका है, इतना मुश्किल हो चुका है कि इससे ज़्यादा मुश्किल कोई काम है ही नहीं। 4 वजह से निकाह मुश्किल हुआ। ध्यान से सुनिएगा, निकाह कैसे मुश्किल हुआ। जब निकाह करने की बात आती है तो प्लान बनाते हैं, भोज भात के लिए प्लान बनाते हैं,
डेट बनाते हैं, कौन से डेट में निकाह होना चाहिए, महीने का तयन करते हैं कि कौन से महीने में होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, ऐसे निकाह कर लेंगे लोग क्या कहेंगे, और इसको नहीं देख रहे हैं कि खुदा क्या कहेगा, रसूल क्या कहेंगे, इधर ध्यान नहीं है, लोग क्या कहेंगे। लोग जो भी कहें उससे हमको क्या लेना देना, खुदा जो कह रहा है उस पर हमको लब्बैक कहना है, रसूल जो कह रहे हैं उस पर लब्बैक कहना है। तो रसूल को अगर देख करके निकाह करते, खुदा को देख करके निकाह करते तो निकाह आसान था, समाज को देख करके निकाह कर रहे हैं इसलिए निकाह मुश्किल हो गया। दूसरी बात को याद रखिए, निकाह जो मुश्किल हुआ है दावत की वजह से, ये दावत नहीं है या दावत है। हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा, दावत क्या है, दो ही दावत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, एक अकीका एक वलीमा, इससे ज्यादा कोई दावत नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सिर्फ दो दावत, एक दावत का नाम अकीका, एक दावत का नाम वलीमा, सिर्फ दो दावत, दो दावत के अलावा कोई दावत नहीं। अकीका का मतलब है अल्लाह ने मुझको बेटे का बाप बनाया, बेटी का बाप बनाया, शुक्राने में हम अकीका कर रहे हैं, लोगों को दावत खिला रहे हैं। वलीमे का मतलब है मैं कुंवारा था, मैंने शादी कर लिया, मुझको अल्लाह ने बीवी अता फरमाया, तो अब शौहर अपनी शादी के खुशी में अपने दोस्त अहबाब को दावत खिला रहा है, इसका नाम वलीमा है। तीसरी कोई दावत नहीं थी, ये जो तीसरी दावत का इजाफा हो गया इसने शादी को महंगा कर दिया। कि हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा, 100 आदमी लेकर के आएंगे, जब गिनती हुई तो 420 निकले। ये बच्चों का इजाफा है, बड़े नहीं हैं तो ये बच्चे बिन बाप के हैं, ये तो बाप से ज्यादा खाते। अगर झूठी शान दिखानी थी अपने दरवाजे पर बुलाते, खिलाते, अपने मेहमानों को बेटी वाले के यहाँ बुला करके हम दावत खिलाएं। इस दावत की वजह से शादी महंगी हो गई, निकाह महंगा हो गया। तीसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, निकाह कैसे महंगा हो गया, इसको ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा है ये पूरे जलसे का खुलासा, इसको ध्यान से सुनिएगा, कोई बात याद रहे या ना, इसको याद करके ले जाइएगा। तीसरी वजह, ये निकाह क्यों महंगा हुआ, निकाह क्यों मुश्किल हुआ, आज गरीब को खून के आंसू रुला रहा है। ये निकाह, जब बेटा जवान होता है बाप खुश होता है, जब बेटी जवान होती है तो बाप की नींद हराम हो जाती है। क्यों, वहां लेना पड़ता है, यहां देना पड़ता है, नींद हराम हो रही है। निकाह क्यों महंगा हुआ, मुश्किल हुआ, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। दिखा करके बेटी को लोग सामान देते हैं, मैंने अपने दामाद को बुलेट दिया, मैंने अपने दामाद को भैंस दिया, मैंने अपने दामाद बेटी के लिए सिल्ली गोड़ी से पलंग मंगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर दिन की नई अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दी गई